Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. And for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. Children have got selected in NEET, children have got selected in JEE Mains, JEE Advanced, and they are now well placed in very good companies, multinational companies, as well as big hospitals. And some of the students are studying in very good colleges, those who have yet to pass out from their engineering and the medical colleges. The best of the best colleges, our students are there, studying over there. So they are all there with very bright future. Today's class, it is based on isomerism. I was just getting a lot of queries about the isomerism. So this topic is being taken up over here, and it is exactly based upon the competitive pattern, the questions which are asked in JEE as well as NEET exams. So what is the basic thing that you need to do? As far as NEET is concerned, you have to concentrate strongly on the concepts of NCERT. Word by word, line by line, NCERT has to be done for all the chapters. So many questions, they are framed right from the lines of NCERT itself. So the most important book for NEET and also in JEE these days, it is mainly NCERT. So children, we were discussing about isomerism. Last class, I just talked about two things, that is structural. Structural isomerism is also called as constitutional isomerism. So remember, structural is also called as constitutional isomerism. This part you can make a note of that, right? And there we discussed about chain isomerism, we discussed about position isomerism. अब chain and position में some more questions are there to be done. हमने last class में कुछ questions किए थे और आपने practice किया होगा. So we are going to take up some more questions based on that. उसके बाद हम आएंगे functional isomerism पे और functional isomerism and उससे related questions and metamerism. This is the thing that we are going to take up. जैसे C4H10O है, इससे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है. पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन वहाँ से चेंज होती है. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. प्लस इनके जितने भी आइसोमर्स बनेंगे वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी. जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. और फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब जैसे सपोज आई राइट C2H6O, ये वाला कंपाउंड है. अब इस कंपाउंड को हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हों. तो C2H6O से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आ सकते हैं? C2H5OH एंड इसमें आ सकता है CH3OCH3. मीन्स इसमें अल्कोहल भी है और ईथर भी है. सिमिलरली अगर हमारे पास एसिटिक एसिड भी है, मीन्स इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4O2. अगर उसमें 2 ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं तो प्रोबेबल फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा होगा? एसिड एंड ईस्टर. ये हो सकता है. 1 ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो इट कैन बी अल्कोहल एंड ईथर, it can be ketone and aldehyde. So that way you have to keep on trying. तो यहाँ पे जो C2H4O2 है इसके साथ में हम एक और बना सकते हैं, दैट इज़ ईस्टर HCOOCH3. ठीक है. तो इस तरह से जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स पे डिपेंड करते हैं. फंक्शनल ग्रुप तो एकदम मेन चीज़ है जो डिसाइड करती है किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को. जैसे एसिड है तो एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और अल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम से. मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो किन से रिएक्ट कर रहा है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब किस पे डिपेंड करते हैं? फंक्शनल ग्रुप. अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई. तो
इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे C4H10O दिया है और इसमें क्वेश्चन है कि आपको अलग अलग आइसोमर्स बनाने हैं, जितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें बनाने हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर बनाने हैं C4H10O, तो इसका जो तरीका है वो क्या है? C4H10O में आप ध्यान रखोगे C4H10, तो उसको आप डिफरेंट चेन फॉर्म में आप सबसे पहले लिखो। जैसे C4H10, जितनी भी आप चेन्स बना सकते हो वो चेन्स आप बनाओ। उसके बाद हम प्लेस करेंगे ऑक्सीजन को। अब ये पार्ट हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आइसोब्यूटेन, ये पार्ट आया। इसमें फिर आप देखोगे कि कितने टाइप के कार्बन्स हैं। कार्बन आपको पता है कि 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री होता है। 4 डिग्री को हम एलिमिनेट कर देंगे, 4 डिग्री पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम नहीं लगा सकते। अब आप यहाँ पे देखोगे ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। मीन्स इससे हमारे कितने अल्कोहल बन सकते हैं? 2 अल्कोहल यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ पे ये वाला कार्बन है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री, 2 अल्कोहल यहाँ से बन सकते हैं। मीन्स एक OH आप यहाँ लगाओगे, एक OH यहाँ लगाओगे, ऐसे ही एक OH यहाँ लगाओगे, एक OH यहाँ पे लगाओगे, तो 4 अल्कोहल बन गए। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है इसमें ईथर। कितने तरह के ईथर बन सकते हैं? लेट अस सी। ईथर के लिए एक ये वाला हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 कार्बन होने चाहिए। दूसरा हो सकता है ये वाला, और तीसरा हो सकता है एक हम चेन बना लें ये वाला। मीन्स 3 ईथर बन गए और 4 अल्कोहल बन गए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप चेन बनाओ, जो भी फंक्शनल ग्रुप है जैसे ऑक्सीजन है उसको आप एलिमिनेट करके पहले आप चेन्स बनाओ। उसमें जितने भी टाइप के कार्बन रहेंगे उतने वेराइटीज़ ऑफ अल्कोहल या उतने वेराइटीज़ ऑफ आइसोमर्स बन जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू सी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट कर लो C4H10O को। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे C5H12O। C5H12O इसमें किस तरह से आप देखोगे? C5H12O में भी O को हटा दो और जितने भी आप आइसोमर्स बना सकते हो उतने आप आइसोमर्स बनाओ। ये हो गया C5 नॉर्मल हो गया। इसके बाद हमने आइसो बनाया, इसके बाद हमने बनाया नियो। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज बन सकते हैं जब 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे कितना है? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, लेकिन ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग में चेंज आएगा बिकॉज दिस विल बी 3 पेंटेनॉल। इसलिए 2 डिग्री कार्बन 2 तरह के हैं। ऐसे ही यहाँ पे कितने? 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, और ये वाला 1 डिग्री डिफरेंट है इससे। तो इससे बने 3 अल्कोहल्स, इससे बने कितने? 4, और इससे बना सिर्फ इसमें सब 1 डिग्री है। मीन्स इस कैटेगरी में अगर अल्कोहल सिर्फ निकालने हैं तो आपको कितने वेराइटीज़ मिल रही? 8। मतलब 8 तो सिर्फ अल्कोहल हैं। फिर अगर ईथर भी निकालना होगा, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको आइसोमेरिक अल्कोहल्स निकालने हैं, तो अल्कोहल्स ही इसमें एच हैं। ऐसे ही जिस तरह से आपको बताया आप ईथर बना सकते हो, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लो और या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C5H8। आप सोच भी नहीं सकते कि C5H8 में सिर्फ 5 कार्बन्स हैं और उसमें कितने सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। उसमें आपको लिखने हैं ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। तो 1 बाय 1 हम लेंगे। C5H8 का मतलब क्या? अल्काइन। जब भी अल्काइन है तो उसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं? एक बन सकता है डाइईन, एक बन सकता है अल्काइन, फिर बन सकता है साइक्लोअल्कीन्स, ये सब वेराइटीज साइक्लोअल्कीन्स की है। फिर बन सकता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, फिर बन सकता है स्पाइरो कंपाउंड्स।
बहुत सारे वेराइटीज़, तो आपको बना के देखने पड़ेंगे कि कितने कंपाउंड्स इसमें बन सकते हैं। इसका एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ट्रायल एंड एरर करना है और जो तरीका यहाँ पे बताया है उस तरीके को आपको यूज़ करना है। जैसे C5H8 में सबसे पहले आप क्या करोगे, डाईईन्स का भी फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, तो आप जितने पॉसिबल डाईईन्स हैं 5 कार्बन के वो आप बना लो। तो यहाँ पे ये 6 डाईईन्स बनते हैं, इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। ऐसे ही फिर आप बनाओगे अल्काइंस, तो जितने भी पॉसिबल अल्काइंस हैं चेन के साथ, ब्रांच के साथ, वो पूरे आप अल्काइंस बनाओ। उनका नेम अलग होना चाहिए। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया और उसका नाम सेम आ रहा है तो वो सेम टाइप का हो जाएगा, डिफरेंट आइसोमर नहीं होगा, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको देखना है। फिर आते हैं हम साइक्लिक अल्कीन्स। साइक्लिक अल्कीन्स, तो ये साइक्लोपेंटीन हो गया, ये साइक्लोब्यूट में ये वाली वैरायटी हो गई, ये वाला आइसोमर हो गया। ये भी साइक्लोब्यूटीन में मिथाइल साइक्लोब्यूटीन हो गया। यहाँ पे भी आपने बॉन्ड को शिफ्ट किया तो एक अलग आइसोमर हो गया। ब्यूट में इतने वेराइटीज़ हैं, पेंट में इतनी वेराइटीज़ हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज साइक्लोप्रोप, मतलब 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में ये वाली वैरायटी हो गई। फिर साइक्लोप्रोप में यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाना है। कार्बन्स हमको 2 चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप्स ले लो या एक इथाइल ग्रुप ले लो। इस तरह से आपको डिफरेंट फॉर्म मिलेगा यहाँ पे, जो साइक्लोप्रोप पे ही हमको इतने सारे आइसोमर्स मिल रहे हैं। आप नाम लिखोगे तो सबके नाम अलग आएंगे। उसके बाद ये भी साइक्लोप्रोप में है। उसके बाद हमारे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ये हो गए 4 कार्बन्स, ये हो गया मिथाइल, और यहाँ पे ये बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो की नेमिंग आपको आती है, आप उसका भी नाम लिख के देख सकते हो। तो बाईसाइक्लो में भी नाम आपको अलग मिलेगा। ये दूसरा बाईसाइक्लो हो गया। फिर आपको नेक्स्ट मिलेगा ये वाला बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये सेंटर में एक कार्बन है, इसके आगे, और यहाँ पे भी एक बाईसाइक्लो। मीन्स C5H8 से कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 26 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, राइट। सो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाएंगे, दैट इज़ मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन का क्या मतलब होता है? जब एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एज मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? यहाँ पे है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ डाइफिनाइल मीथेन लिखना है आपको ऑन मोनोक्लोरिनेशन। तो सबसे पहले आप डाइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर आप बनाओ। यहाँ पे ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया डाइफिनाइल मीथेन। इसको जब क्लोरीनेट किया तो हमको देखना है कि कौन कौन से कार्बन अवेलेबल हैं जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो ये आएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये दोनों सेम आ जाएंगे। यहाँ पे हम नहीं जा सकते बिकॉज ये और ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी पोजीशन सेम है, और एक हम रिप्लेस कर सकते हैं 4। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस किस में आ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ रहे हैं, पोजीशन, फंक्शनल एंड चेन से रिलेटेड। फिर आ रहा है C5H12 का मोनोक्लोरिनेशन। इसको आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने C5H12O किया था। ऐसे ही इसमें भी आपको अराउंड 8 आइसोमर्स मिलेंगे। जितने पहले चेन आप बनाइए, जैसे C5H12O, O की जगह आ जाएगा वहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि वहाँ पे कार्बन, जितने भी तरह के कार्बन हैं उतने ही तरह के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और आपको मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो दिस वाज अबाउट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म के बारे में। टॉटोमेरिज्म बहुत डिटेल्स में हमको लेना है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेटामेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग these types of the questions
more and more questions are to be practiced. Subscribe the channel, like the video and press the bell icon so that we are there with you with more video lectures. Till then, thank you so much.